यस। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट ये दोनों कॉन्सेप्ट्स डिटेल में देखे थे। सो लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स इन टुडेस लेक्चर। यस, उससे पहले लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के बारे में जो हमने डिस्कस किया था वो एक बार थोड़ा सा समराइज करेंगे। ओके, आई होप यू कैन सी द बोर्ड। ओके, सो इसमें हमने देखा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट्स, राइट। द फर्स्ट इज the latent heat of fusion, we can say. This is called as a latent heat of fusion, which is nothing but the amount of heat required to convert 1 kilogram of substance from solid state to liquid state at its melting point, remember. And it is defined as LF is equal to QF upon M. M is the mass of substance, okay. ये M मतलब mass है यहाँ पे, ठीक है। फिर अभी latent heat of vaporization, which is denoted by LV here, is defined as the amount of heat required to convert again 1 kilogram of a substance from liquid state to solid state, sorry, liquid state to gaseous state, and at the boiling point, and obviously without change in its temperature. So this is called as the latent heat of vaporization, okay, which is defined as LV is equal to QV upon M, where M is again the mass, no doubt. So in general, we can say latent heat is simply the amount of heat required to convert the substance from one state to another state. ठीक है, तो 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो इसलिए यहाँ पे Q अपॉन M ये बन जाएगा फॉर्मूला फॉर latent heat. ओके, तो अगर L इज इक्वल टू Q अपॉन M है तो उसमें हम बोल सकते हैं ना कि Q इज इक्वल टू M इंटू L होगा जरूर. That means the heat absorbed during the change of state is given by mass into latent heat, corresponding latent heat. For example, the amount of heat absorbed during the change of state from solid state to liquid state will be actually given by QF, which is going to be equal to M into LF, where M stands for the mass again, and LF is nothing but the latent heat of fusion of that substance. Similarly, the LV, QV here, the amount of heat required or absorbed during the change of state from liquid state to gaseous state is going to be equal to mass into latent heat of vaporization in this way. तो ये दोनों फॉर्मूले जो है वो इसी एक फॉर्मूले का कॉन्सिक्वेंस है, अलग अलग फॉर्म्स है। अभी देखो इसमें थोड़ा हम और डिस्कस करते हैं, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके बारे में, फिर भी एक बार वापस रिपीट करते हैं कि अगर हम सपोज एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे सपोज हीट प्लॉट करके रखा है, हीट, और सपोज वाई एक्सिस में टेम्परेचर प्लॉट करके रखा है जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो 0 केल्विन से स्टार्ट होता है। तो 0 केल्विन से हमने स्टार्ट करके अगर ये टेम्परेचर इस तरह से प्लॉट किया वाई एक्सिस पे, तो हम पाते हैं कि जैसे हम हीट देते हैं बॉडी को तो वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ it will be a straight line, no doubt, showing that the heat given to the substance is always directly proportional to the heat given to the substance is directly proportional to the temperature, obviously. So जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना हीट गिवन हम देते जाएंगे, या जितना हीट दिया जाएगा उतना टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। Okay, so this is the first part of this graph in which it will be directly proportional. Okay, temperature and heat will be directly proportional, and in this case the substance will always be in solid state. ये समझ सकते हैं आराम से, but afterwards the temperature will remain constant at its boiling point. We can call it as a TB, sorry, melting point, TM we'll say. So TM मतलब क्या है यहाँ पे, melting point है, ठीक है। तो melting point पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट बन जाता है
और कुछ देर तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। जब तक पूरा सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, वंस द स्टेट इज चेंज्ड, complete solid is converted into liquid, and if you just continue to give the heat, then again in that case the substance starts increasing its temperature। तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, वो भी बढ़ता रहता है कब तक, जब तक ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो ये लिक्विड स्टेट में यहाँ पे होगा, so we can call it as a liquid in this case। okay, and then at a particular point we can say its boiling point, we can call it as TB here। so boiling point पे क्या होता है कि it starts boiling and its temperature once again just becomes constant, and it remains constant for a long time, and then so far as the whole liquid is converted into gaseous। तो जब तक ये पूरा लिक्विड गैस में नहीं कन्वर्ट हो जाता तब तक ये चलता रहता है। and once the whole liquid is converted into the gas, then afterwards if we just continue to give the heat to this gas itself, then it will just increase its temperature in gas only। तो गैस का ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा अभी। तो इस हालत में यहाँ पे इस पॉइंट के बाद वो जो सब्सटेंस है वो गैसियस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल नेचर we can say of the graph। we can just say O is the starting point, A is the point where the melting starts, B is the point where melting is completed, and then C is the point where boiling starts, and D is going to be the point where boiling is completed, and then we can just increase its temperature up to any value by giving the sufficient amount of heat afterwards। there is no end point after this here। तो यहाँ पे एक बार वो गैस बन गया, उसके बाद उसको कितना भी हीट हम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो हियर इन दिस केस यू कैन जस्ट सी द ग्राफ केयरफुली। तो अगर सपोज हमको न्यूमेरिकल के अंदर ये ग्राफ क्यों रिपीट किया वो मैं बताता हूँ अभी, कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर अगर हमको सॉलिड के बारे में अगर दिया हुआ है तो उसके लिए हम उसका जो टेम्परेचर मान लो यहाँ से यहाँ तक चेंज होता है, और सॉरी मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है और उस पोर्शन में उसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया वो अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज द फॉर्मूला दैट इज Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। ओके, ये स्पेसिफिक हीट वाला जो फॉर्मूला है वो हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। याद रखो ठीक से, Q इज इक्वल टू M S इंटू डेल्टा T, वेयर S is called as the specific heat of the solid specially। तो इस सॉलिड का स्पेसिफिक हीट हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जरूर। okay, but after the melting starts, so whatever heat amount of heat is absorbed during this portion from A to B here can be obtained by just using the formula Q is equal to M into L। obviously it will be QF because it is a latent heat of fusion, so therefore this QF is equal to M into LF। ये वाला formula use करना पड़ेगा हमको in order to find out the total amount of heat obtained during this condition। and if suppose this converts into liquid, and liquid के अगर दो कोई भी temperatures है, समझो यहाँ से suppose सॉरी यहाँ से अगर यहाँ तक टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड का और उस पोर्शन में वो कितना हीट एब्जॉर्ब करता है वो अगर हमको ढूंढ के निकालना है तो उसके लिए सीधा हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फिर से Q इज इक्वल टू M that is the mass into specific heat of that liquid into change in temperature, that is delta T we can say। so in this case we can just find out the amount of heat by using this formula, the formula for specific heat। ठीक है, तो उसके अंदर स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड हमको चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आगे जाके ये CD के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब किया उसके लिए फिर से हमको लैटेंट हीट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन दिस टाइम इट विल बी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपोराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा QV is equal to M into LV in this way, and after it becomes a gas, once again we can just consider the formula for specific heat once again। so Q is equal to MS into delta T will be the formula used for finding the amount of heat absorbed by the gas, and here this S stands for the specific heat of gas actually। तो ये S जो है यहाँ पे गैस का स्पेसिफिक हीट रहने वाला है। तो ये पूरा अगर सिस्टम तुम याद रख लो तो
कोई भी सब्सटेंस को कितना हीट रिक्वायर्ड है, तो वो उसका अगर लेटेंट हीट और हीट ऑफ लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट अगर पता है, तो तुरंत हमको उससे आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज 2-3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले लेंगे, जिससे तुमको ये कंसेप्ट जो है वो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो ठीक से, ये ग्राफ सामने ही रखो बिल्कुल। तो अभी सबसे पहले हम ये कंसिडर करेंगे क्वेश्चन। सपोज अभी इसमें एक बात याद रखो, अगर वाटर के लिए अगर बात करते हैं, वाटर, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट फिक्स्ड है। तो वो क्वेश्चन में दिया होगा मे बी, बट यू जस्ट रिमेंबर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर, मतलब 1 किलोग्राम आइस को कन्वर्ट करने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ हीट लगता है, तो वो होता है 80 किलो कैलोरी पर केल्विन, सॉरी पर किलोग्राम। ओके, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब आइस का 1 किलोग्राम आइस को पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ हीट लगता है। सिमिलरली, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वी कैन जस्ट से, just wait a minute. Okay, so latent heat of vaporization of water especially is actually almost about 560 kilocalorie per kilogram again. Okay, और ये भी याद रखो कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है, तो वो तो तुमको पता है ऑलरेडी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर is actually 1 calorie per kilogram, sorry, per grams degree Celsius, or we can also express it as 1 kilocalorie per kilogram Kelvin. Okay, and in the same way, we can just find out the latent heat, specific heat of ice also. तो आइस का जो स्पेसिफिक हीट है, तो वो हम ढूंढ सकते हैं आराम से। इट हैपेंस टू बी एक्चुअली 0.5 किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन। ये सब वैल्यूज दिए हुए हैं सपोज, ठीक है। एंड सपोज अभी ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, मतलब इसका भी मुझको चाहिए ना, वेपर्स का भी स्पेसिफिक हीट चाहिए, वाटर वेपर्स। तो वो अगर दिखेंगे एस भी सपोज, इट्स अबाउट 72 किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन। ओके, तो जस्ट एज्यूम दिस वैल्यूज। अभी इसमें ये सब तो श्योर है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वैल्यू फॉर द गैस। ओके, बट चलो ठीक है, ये सपोज गिवन है, ठीक है, गिवन इन द न्यूमेरिकल। एंड सपोज यू वांट टू फाइंड आउट नाउ, find the amount of heat required to convert okay ice at 20 degrees Celsius, minus 20 degrees Celsius to water at 50 degrees Celsius. Okay, how will you solve this question? क्या हमको दिया है, देखो ठीक से, the amount we want to find out the amount of heat required to convert the ice at minus 20 degrees Celsius into water at 50 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब हमको 20 डिग्री सेल्सियस का आइस जो दिया हुआ है, उसको 50 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना है।
उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट टोटल लगेगा, तो वो हमको चाहिए। अभी देखो इसका मतलब अगर हम ये इस टाइप का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं वाटर के लिए, तो भी वो उसी टाइप से बनेगा। ये देखो ये ऐसा ही ग्राफ बनेगा, नो डाउट। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सपोज इट इज 5 किलोग्राम ऑफ आइस। ओके, तो अब देखो ऐसा ही ग्राफ बनेगा जिसमें ये वाला जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, राइट। और यहाँ पे जो है 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा जरूर। ओके, वाटर के लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं ये ग्राफ, तो ये इस तरह से 0 और 100 बनेगा। अभी अभी हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, देखो ठीक से। हमको जाना है एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो -20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये -20 डिग्री सेल्सियस मतलब यहाँ पे हमको मिलेगा, यहाँ पे किधर तो भी है, राइट। तो ये पॉइंट होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ए वी कैन से। और उसके बाद फिर दूसरा जो पॉइंट हमको मिलेगा तो वो है बी। तो यहाँ से हमको जाना है, ये देखो, इफ वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ए, we'll have to go from to this point first, and then we'll have to go to this point, and then we'll have to go to this point here, which is our final point, final destination, which is the point B here, where the temperature of this water will be actually 50 degrees Celsius in this way. Okay, तो यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, -20 डिग्री सेल्सियस। वहां से हमको आइस को लेके जाना है इधर बी पॉइंट पे, जहाँ पे वो वाटर है, और वो भी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला वाटर है। तो इसमें कौन से चीजें हमको यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, तो देखो ठीक से। सबसे पहले हमको आइस का जो टेम्परेचर जो है वो -20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये समझते हो पहले, ठीक है। आइस हैज टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये सबसे पहला जो है पार्ट, उसके अंदर जो हीट लगेगा वो एक्चुअली क्यू एफ इज इक्वल टू M × LF से मिलेगा। ये समझ सकते हो ठीक से, बिकॉज इट इज, सॉरी 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 सॉरी, इट विल बी द, वो सॉलिड ही है ना। तो सॉलिड सॉलिड का 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट लगेगा वो हमको यूज करना पड़ेगा Q = M × S चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे डेल्टा टी हियर। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है वो स्पेसिफिक हीट एक्चुअली SI के से हम डिनोट करेंगे इधर, ठीक है, SI। ओके, अब ये तो हमको मिल गया। आइस का टेम्परेचर हमको -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है वो हमको मिलेगा, ठीक है। नाउ वी जस्ट लेट अस टॉक अबाउट द कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। अभी आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट लगेगा वो हमको इस फॉर्मूला से मिलेगा। क्यू, इसको हम चाहिए तो QI बोल देंगे। ओके, QI, yes. Then we can just get the latent heat of fusion. We can call it as QF, which is nothing but the mass of the ice or water multiplied by L, that is LF, that is latent heat of fusion. And finally, अभी जब वो पूरी तरह से वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वाटर लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हमको ये सोचना होगा कि वाटर का टेम्परेचर हमको अभी 0 डिग्री सेल्सियस से हमको 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। उसके लिए कितना हीट लगेगा, तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से बाय यूजिंग द सिमिलर फॉर्मूला, दैट इज स्पेसिफिक हीट। तो उसको हम बोलेंगे QW, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू mass into specific heat of water into change in temperature again, in this way. So here we can just add all these three so as to get the total amount of heat. So the total amount of heat required will actually be equal to amount of heat required by ice to convert to increase its temperature from -20 to 0, plus the amount of heat required for ice to get converted from ice to water, plus the total amount of heat required for water to increase its temperature from 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो इन तीन पार्ट्स में हमको उसको निकालना होगा, समझ सकते हो ठीक से। सो इफ यू जस्ट फाइंड इट आउट, सो QI is actually going to be
MSI into delta T, where M is nothing but, तो अभी देखो M तो मास दिया हुआ है जो कि 5 किलोग्राम, तो वो आइस का भी मास 5 किलोग्राम है. यस, वेरी गुड अथर. सो आइस का भी मास 5 किलोग्राम है, वाटर का भी मास 5 किलोग्राम है. सो नो डाउट. सो देयरफॉर यू हैव टू बी 5 into what is the specific heat of ice. We already given it with this 0.5, so we can just put it here and get this 0.5 into change in temperature. What is the change in temperature? तो यहाँ पे -20 से 0, मतलब 0 minus -20, तो मतलब 0 plus 20 हो गया वो. So this is going to be actually the change in temperature, that is +20, and we can just try to find it out. So how much it will be? तो अगर ये करेंगे तो 0.5 into 20 बनता है 10, और 10 into 5 मतलब 50 बन गया वो. ठीक है, so just note down this as 50 kilocalorie, okay, because all the units are in kilocalorie only. Okay, now if we just talk about this QF means the amount of heat required to convert the 5 kilogram of solid ice into liquid water. So it will be 5 into 80, okay, 80, which happens to be actually 400. Again, it is in kilocalorie only. Yes, and then last is this one. So M into SW. So 5 into 1 into change in temperature now, which is from 0 degrees Celsius to 50 Celsius. That means it will be 50 minus 0, which actually happens to be 50 only. And then we can just say this whole will be 250, right? So 250, again, it is going to be in kilocalorie. So if we just put all these values here, then we can just be able to get this finally, that first is 50 plus second part comes out to be 400 plus the third part actually comes out to be 250, right? And hence, if we just add these together, then we can just get this as 700 kilocalorie as the amount of heat. Correct है? ये 200 कैसे आया तुम्हारा? Yes, it will be 50 kilocalorie only, and this will be in kilocalorie only. So we have found out the amount of heat required to convert 5 kilogram of ice from -20 degrees Celsius to water at 50 degrees Celsius. Getting this correctly? क्या समझ में आया सबको ठीक से? अगर कुछ डाउट है तो जरूर पूछो, चैट बॉक्स में डालो फटाफट. Okay, if you have understood this, then we should be able to do another example of the same type here. Suppose और एक example हम ले लेंगे फटाफट. ठीक है. So the second example here is find amount of heat required to convert two kilogram of ice at -40 degrees Celsius to vapors at 120 degrees Celsius. ओके, अभी देखो ठीक से, अभी कितना हीट लगेगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. तो मतलब 2 किलोग्राम आइस हमारे पास दिया हुआ है जो कि -40 किलोग्राम पे 40 डिग्री सेल्सियस पे है, और उसको हमको ट्रांसफर करना है वेपर्स एट 120 डिग्री सेल्सियस के अंदर. तो इसमें सारे के सारे पार्ट्स यूज होंगे. देखो कैसे, अगर हमने फिर से वो ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज इस तरह से, ओके, तो यहाँ से हमको स्टार्ट करना है जहाँ पे आइस है और उसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, -40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, और उसके बाद यहाँ से हमको उसको आइस को पहले पूरी तरह से 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना है.
उसके बाद फिर वाटर को हमको मेल्ट करना पड़ेगा, आइस को मेल्ट करना पड़ेगा, वाटर बनाना पड़ेगा, उसके लिए लैटेंट हीट रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद फिर वाटर को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए जो भी हीट लगेगा वो हमको मिल जाएगा आराम से स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूला से। और उसके बाद फिर इस वाटर को हमको बॉईल करना होगा। ठीक है, पूरी तरह से हमको उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना होगा, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसके लिए हमको हीट का फॉर्मूला लगेगा। और उसके बाद फिर उन वेपर्स को जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है उनको हमको 120 डिग्री सेल्सियस पे हमको लेके जाना पड़ेगा। करेक्ट है, यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये देखो, तो 120 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाने के लिए फिर से हमको और हीट देना पड़ेगा आफ्टर द वाटर इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। ओके, तो मतलब हमको ये जो पूरा हीट है वो 5 पार्ट्स में से मिलेगा। सबसे पहले हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से फिर यहाँ तक जाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद इधर, और इसके बाद यहाँ पे। तो ये 5 पार्ट्स में हमको उसको डिवाइड करना है। लेट अस गिव दिस 5 पार्ट्स द नेम्स लाइक A, suppose this is B, suppose this is C, here it is D, and here it is E, and then F. Okay, so what is the amount of heat as absorbed by the ice uh, to increase its temperature from -40 to 0 डिग्री सेल्सियस? दैट विल बी द हीट एब्जॉर्ब्ड इन ए बी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे द पार्ट ए बी के बारे में, फिर उसके बाद बी सी के बारे में, उसके बाद फिर सी डी के बारे में, उसके बाद डी ई, and then finally we can just talk about EF in this way. So if we just talk about AB, then what is the amount of heat required to convert 2 kilogram of ice from -40 degree Celsius to 0 degree Celsius first? तो वो हमको निकालना है। that will be possible by using this specific heat formula. तो उसको हम बोलेंगे QI, which is given by M into SI into delta T। करेक्ट है। सो यहाँ पे लेकिन डेल्टा टी कितना है तो हमको पता है ऑलरेडी, मास इज 2 किलोग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज ऑलरेडी गिवन टू बी 0.5, and then it should be multiplied by delta T, where change in temperature is from -40 degree Celsius to 0 degree Celsius. That means 0 minus -40 मतलब वो बनता है 40। करेक्ट है, so here it will be 40 in this way, and then we can just be able to get this as 40 only. So here it is going to be 40 kilocalorie. This is actually going to be the amount of heat absorbed in this part AB here. Okay, वो तो चलो खत्म हो गया। अब now just focus on BC. Okay, तो BC पे अगर फोकस करते हैं तो the amount of heat absorbed in this part BC here will actually be the latent heat. So we can just, and that is the latent heat of fusion actually. So latent heat of fusion, we know that it is given by the formula M into L, where L is the latent heat of fusion here. So we can just get this 2 kilogram multiplied by latent heat of fusion of ice, which is already known to be 80 here. So that we can just get this as 160 kilocalorie in this way. Okay, चलो ठीक है, ये हमको सेकेंड पार्ट का भी मिल गया हीट। जस्ट फॉरगेट अबाउट BC नाउ एंड जस्ट फोकस ऑन CD हियर। तो CD पे अगर फोकस करते हो तो पता चलेगा कि CD के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया हुआ है वाटर ने, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, तो that will be called as QW here. So it will be obtained by the specific heat formula, that is M into SW into change in temperature, that is delta T here. ये बात यहाँ पे याद रखो ठीक से कि इधर का जो S स्पेसिफिक हीट है आइस का, वही हम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं। ये बात याद रखो ठीक से, क्योंकि जब आइस होता है तो उसका कंस्ट्रक्शन ही अलग होता है, उसका बनावट ही अलग है, इसलिए उसका स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होता है। और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यस कशिश, सो व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इट स्पेसिफिक हीट चेंजेस। ठीक है, इट इज डिफरेंट, इट हैज टू बी गिवन, एंड अगेन इट व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू द गैसियस स्टेट, अगेन इट्स स्पेसिफिक हीट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, सो इट स्पेसिफिक हीट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स। ऐसा नहीं आइस है तो उसका स्पेसिफिक हीट हम वाटर के लिए यूज करेंगे, वेपर के लिए भी यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इट हैज टू बी गिवन। ओके, सो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 into specific heat of water, we already found it out as 1 into change in temperature of water, which is from 100 to 100 minus 0, मतलब 100 ही हो गया वो। तो इसलिए फिर 100 से अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 200, and that is in kilocalorie in this way. Then again go to the next part DE here.
in which the liquid means water is gets boiling, just boiling, and it just boils and just gets converted into completely into vapors. So vapors में convert करने के लिए कितना heat लगता है, तो वो उसको latent heat हम बोलते हैं. तो that will be found out by the formula QV is equal to M into LV, right? Where QV is equal to M मतलब 2 kilogram, and that should be multiplied by LV, where LV is going to be the latent heat of vaporization, which is already given here to be 560 kilocalorie per kilogram, right? So 2 kilogram of water will require the heat of 2 into 560 kilogram, okay, sorry, kilocalorie, to convert it completely into vapors. So it happens actually to be 1220, right? Sorry. 1120, and that is also going to be in kilocalorie. Okay. Yes. And then last part we can just talk about is the amount of heat required by vapors. Okay, vapors के द्वारा जो heat required है उसको हम चाहिए तो steam बोल देंगे, QS. Okay, steam. So QS will be actually M into SV, where SV stands for this specific heat of vapors, which is given to be 72 here, and that is multiplied by change in temperature. Now अभी देखो वेपर्स का टेम्परेचर हमने कितना चेंज किया है. वेपर्स का ऑलरेडी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता ही है जब वो कन्वर्ट होता है, और उसके बाद हमको उसको 120 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है. तो 100 से 120 मतलब वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो गया. तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मास इज गोइंग टू बी द सेम 2 किलोग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर्स इज गोइंग टू बी 72, and that is multiplied by change in temperature, that is 120 minus 100, which is going to be 20 simply, so that we can just get this as 72 double 144 double 288, so it will be 2880. That's it, and that is again in kilocalorie, correct hai? So in this way, and now we have to add all these heats here. So ye Q jo hai, total amount of heat will be actually the sum of all these 5 parts, that is QI plus QF plus QW plus QV plus QS. QS मतलब heat required by steam. Okay. Yes. So it will be actually QI. अभी QI हमने निकाल के रखा है 40 kilocalorie plus QF is already 160 kilocalorie plus QW, which is going to be 200 kilocalorie plus QV is here 1120, and finally it is 2880. Okay, so if you just add these all here, then these two adds up to 200. 200 plus 200 becomes 400, right? So here it is going to be 400 plus 1120 plus 2880. ये 20 अगर 80 में डाल दो तो वो 2900 हो जाएगा. 2900 प्लस 1100 ऐड करेंगे उसमें तो 4000 आ जाएगा, राइट? Yes, so it will be 4400 extra, so that we can just get it as 4400 in this way. Yes, so finally we are going to get it as a 4400 kilocalorie. Okay, this is going to be actually the amount of heat required. So this type of questions can be easily solved by using this technique. Okay, now let us go further in this chapter. Yes, now you can just see the principle of heat exchange. Remember, it is a very important principle of heat exchange. Actually, it is the part of calorimetry. ये जो है पूरा कैलोरीमेट्री के अंदर ही आता है. कैलोरीमेट्री का मतलब क्या कि देखो, अगर सपोज हम दो अलग अलग टेम्परेचर्स के बॉडीज अगर इकट्ठा करते हैं, उनको अगर कांटेक्ट में लेके आते हैं,
तो क्या होता है कि देयर इज अ हीट एक्सचेंज बिटवीन दोज टू बॉडीज. ओके, and it happens already always that the amount of heat lost, क्योंकि क्या होता है देखो, when the two bodies at two different temperatures are kept in contact, suppose one body is at temperature T1 is kept in contact with the another body of temperature T2, then we already know that the heat always flows from the body at high temperature to the body at low temperature. Suppose T1 is greater than T2, then the heat will just try to flow from high temperature to low temperature. Okay, ये तो clear है. But कब तक ये हीट फ्लो होता रहता है? जब तक ये दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल ना बन जाए, एग्जैक्ट इक्वल ना बन जाए. तो जब ये दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जब इक्वल बन जाता है, तब जाके ये टेम्परेचर जो हीट का फ्लो होना जो है वो बंद हो जाता है. तो द अमाउंट ऑफ हीट, नो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज आफ्टर दैट पॉइंट. सो द हीट फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, and heat always flows from high temperature body at high temperature to the body at low temperature when the two bodies at two different temperatures are kept in contact. And here precisely we can say what does this principle of heat exchange tells us. It's very simple principle, and it is just based on common sense. It is that heat lost by the hot substance. Hot substance means that body at high temperature. Okay, so heat lost by hot substance is always going to be equal to the heat gained by or heat absorbed by cold substance. ये होता है, इसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. अभी तुम बोलेंगे ये तो हमको ऑलरेडी पता था, उसमें कौन सी बड़ी बात है. बट यही हमको पता होना चाहिए कि इसको ही प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज बोलते हैं, और इसके बेसिस पे इसको यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन जस्ट नो द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन अननोन सब्सटेंस आल्सो by using this principle of heat exchange, which tells us simply that heat lost by hot substance is always equal to the heat gained by cold substance. For example, देखो अगर suppose एक the copper sphere, एक सिंपल सा एग्जांपल ही हम ले लेंगे. copper sphere of mass suppose 5 kilogram at 120 degree Celsius. या चलो 150 degree Celsius. Okay, 150 degree Celsius is introduced in 10 kilogram water at 30 degree Celsius. ओके, ये हमको दिया हुआ है. यस, आफ्टर लॉन्ग टाइम the temperature of mixture is found to be suppose 80 degree Celsius. Okay, temperature of the mixture is found to be 80 degree Celsius. Then the question here is find the specific heat of copper. Yes, can you find it out? मतलब अभी होता क्या है ना कि सपोज एक कंटेनर है जिसके अंदर 10 किलोग्राम ऑफ वाटर रखा हुआ है, और वो भी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, मतलब लो टेम्परेचर पे हो गया ना, वो लो टेम्परेचर पे रखा हुआ है वाटर. ओके, एंड आफ्टर दैट कॉपर स्पीयर, एक कॉपर स्पीयर हमने यहाँ पे इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जो 150 डिग्री सेल्सियस पे था, और वो भी 5 किलोग्राम मास का था. ठीक है, तो 5 किलोग्राम का जो कॉपर का स्पीयर वो 150 डिग्री सेल्सियस पे हो, तो वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया इस वाटर के अंदर. और हमने देखा कि बहुत समय के बाद कि उसका मिक्सचर का जो टेम्परेचर है, तो वो हमको पता चला इट बिकम्स 80 डिग्री सेल्सियस हियर. दैट मीन्स कॉपर का स्पीयर जो है उसका भी टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस,
और वाटर का भी टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस बन गया आफ्टर सम टाइम. So what should be the specific heat of the copper? We have to find out. And obviously, the specific heat of water is given already. तो वो दिया हुआ हो या ना भी दिया हुआ हो, फिर भी हमको पता है already. Specific heat of water, we already know that it is going to be 1 kilocalorie per kilogram Kelvin. Correct है? ये तो हमको पता है already. ठीक है, but it is also still given also. वो दिया हुआ भी है और ठीक है. अभी देखो होता क्या है ना, इफ यू जस्ट प्लॉट दिस ग्राफिकली, अगर हम ये ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये है सपोज हमारा वाटर का टेम्परेचर जो कि 3 डिग्री सेल्सियस, विच इज द लोअर टेम्परेचर हियर, एंड सपोज हियर इट इज द हायर टेम्परेचर. जो दूसरे बॉडी का जो टेम्परेचर है कॉपर स्पीयर का, वो 150 डिग्री सेल्सियस है, राइट? सो दिस इज 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. नाउ व्हेन बोथ ऑफ these bodies are just kept in contact, brought in contact, what will happen is the copper sphere will just start losing the heat, right, to the water. तो ये जो कॉपर स्पीयर है वो हीट लूज करना चालू करेगा, और जैसे जैसे वो हीट लूज करेगा और वाटर विल स्टार्ट गेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ हीट, राइट? सो जैसे जैसे ही हीट वाटर गेन करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर का जो हीट टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बिल्कुल. और उसके बाद जो कॉपर स्पीयर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे फॉल होता जाएगा, कम 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 होता जाएगा. एंड एक समय आएगा कि जब दोनों का जो टेम्परेचर है वो एक कॉमन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर किसी का भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा या ना ही घटेगा. तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑफ दिस, दैट इज अ मिक्सचर, you can say, will attain a constant value which will remain for a long time after that, and that temperature here is going to be 80 degrees Celsius, which is given here. तो यहाँ पे वो 80 डिग्री सेल्सियस करके दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर. व्हाट इज मिक्सचर? क्योंकि देखो स्पीयर का जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस से फॉल फॉल होता होता आया, कम कम होता आया, और जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो भी 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता बढ़ता जा रहा है. दोनों का टेम्परेचर जब सेम बनेगा, इक्वल बनेगा, तब जाके हीट फ्लो स्टॉप होगा. तो उन दोनों के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा उसके बाद. तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि आफ्टर दैट पॉइंट द हीट फ्लो विल जस्ट स्टॉप, एंड दैट्स व्हाई दैट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड और फाइनल टेम्परेचर अटेन्ड बाय द मिक्सचर. तो उसको हम मिक्सचर का टेम्परेचर बोलेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर उसको बोल सकते हैं. ठीक है. अभी अगर सपोज यहाँ पे अगर हमको ये फॉर्मूला यूज करना है कि हीट लॉस्ट बाय हॉट सब्सटेंस, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे, हीट लॉस्ट by, in this case, what is the hot substance? Copper sphere, right? So therefore we can just get that the copper sphere here, heat loss by copper sphere will be on one side, which must be equal to, exactly equal to the heat loss, heat gained actually by water. Correct है? Heat gained by water in this case. Okay. तो अगर हम ये बात यूज करेंगे तो अभी देखो heat loss by copper, how can we get it? तो अभी कॉपर जो है वो सॉलिड स्टेट में है, और वो सॉलिड स्टेट में ही रहा है, वो कन्वर्ट तो हुआ नहीं है, तो सॉलिड का सॉलिड में ही रह रहा है वो. तो इसलिए यहाँ पे हमको स्पेसिफिक हीट यूज करना पड़ेगा, स्पेसिफिक का फॉर्मूला जो कि हमको पता है ऑलरेडी, मास ऑफ कॉपर, ओके, इनटू द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इनटू द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर ओनली. ओके, ये चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर अभी ये कितना है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो इनिशियल टेम्परेचर कॉपर का था उसको उसको अगर हम TC बोल के रख देंगे, और ये जो फाइनल टेम्परेचर हमको मिल रहा है तो उसको अगर हम सपोज T बोल के रख देंगे, और इनिशियल टेम्परेचर वाटर का जो था उसको अगर हम TW बोल के रख देंगे, तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, तो मास कॉपर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर. अभी कॉपर का टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट हुआ, TC से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे T तक चला गया, डिक्रीज हुआ. तो इसलिए लॉस इन टेम्परेचर कितना हो गया, उसका चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, TC minus T here. T is the final temperature attained by the mixture. Okay. And now, if we just talk about the heat gained by water, then we can just use the formula once again, that is mass of water into specific heat of water into change in temperature of water itself. Now, what is the change in temperature of water? It moves from 30 degrees Celsius, that is TW, to 80 degrees Celsius, that is T here. So the change in temperature can be obtained by subtracting this TW from T. तो T minus TW हमको करना पड़ेगा जरूर.
So let us take it as T minus TW, and this is going to be actually the change in temperature of water. Okay, if we substitute all the values, then mass of copper is actually given to be 5 kilogram. If you just note it down in the question, तो यहाँ पे आ गया 5 kilogram into specific heat of copper. Is it given here? It's not. So वो दिया ही नहीं है. So let us call it as SC for a while. It is actually to be found out, right? यहाँ पे हमको वो निकालना है. Yes. Yes, very good, Athar. You're getting it as 10 by 7. Okay. So here Tc, where Tc is going to be actually the 150 degrees Celsius minus T, that is 80 degrees Celsius here, which must be equal to Ms, where mass of liquid, sorry, यहाँ पे Ms नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे Mw होना चाहिए, right? Mass of water होना चाहिए. Okay. So here it is Mw, which is going to be 10 kilogram actually. If you just see in the question, so the 10 kilogram of water दिया हुआ है यहाँ पे, कि नहीं? ये देखो 10 kilogram of water दिया है, और वो भी कितना 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसलिए वहां पे हमको यूज करना है उसको. तो ये 10 किलोग्राम तो हमने डाल दिया, चलो ठीक है, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SW? इट इज ऑलरेडी गिवन इन द ब्रैकेट हियर इन द क्वेश्चन, राइट? इट इज गिवन टू बी 1 किलोग्राम कैलोरी पर किलोग्राम. अगर वो नहीं भी दिया होता तो भी हमको ऑलरेडी पता है कि इट इज गोइंग टू बी इन किलो कैलोरी पर 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम ही होता है वो करके, ठीक है. तो उसको हमने डाल दिया 1, and that is to be multiplied with the change in temperature of water actually, which is actually going to be 80 minus 30. वाटर का टेम्परेचर क्योंकि 30 से 80 तक चढ़ा है इसलिए, तो अब यहाँ पे हमको मिलेगा 5 into SC into 70, करेक्ट है, which is actually going to be equal to 10 times, what is this, it will be 50 actually, right? So here it is 50, and then we can just be able to find out this SC here. So यहाँ पे ये जो 0 है वो 0 कैंसिल कर दो, और 5 जो है वो इसको रिड्यूस कर दो इस 50 के साथ, leaving behind 10 only, so that we can just be able to get this SC to be simply equal to 10 by 7, which is approximately equal to 1.4, yes, 8, बस हो गया 1.4 या 428 आउट, ठीक है. So this will be the amount of heat. अभी what is the unit of this specific heat here? The same as we have got it here in the for the water. तो water का जो specific heat हमको मिला हुआ है वही हमको यहाँ पे भी डालना है, बिल्कुल. तो यहाँ पे वो मिल जाएगा किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन, that's it, or degree Celsius you can say. So 1.428 kilocalorie per kilogram Kelvin. This will be the specific heat of copper we have found out from this question. Okay. So in this way, we can just try to find out the specific heats of different substances by using this principle of heat exchange. अभी इसमें यहाँ पे हमने जो कैलोरीमीटर का जो कंटेनर है, मतलब ये जो कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर वाटर रखा हुआ है, उस कंटेनर ने जो हीट एब्जॉर्ब किया वो हमने यहाँ पे निगलेक्ट किया है एक्चुअली. ये कंटेनर भी तो कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं, और इवन ये हीट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टीरर, ठीक है. तो स्टीरर को रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो वो भी तो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा जरूर. तो भले वो कम होगा, इट इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल, सो दैट वी कैन निग्लेक्ट इट, बट नॉट एवरी टाइम. इफ यू वांट एक्यूरेट आंसर, अगर हमको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो ऐसे केस में हमको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा. दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर एंड द स्टीरर. तो कैलोरीमीटर और स्टीरर, इन दोनों का मटेरियल और उन दोनों का स्पेसिफिक हीट, मटेरियल का स्पेसिफिक हीट अगर हमको पता है, तो चेंज इन टेम्परेचर तो उसका भी उतना ही है जितना वाटर का हो रहा है. तो इसलिए फिर वहां से हम उसका, उसने एब्जॉर्ब किया जो हीट है वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, और उससे हमको और ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो किस तरह से निकालना होता है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टुडेज लेक्चर. यस.